Good morning, students. This is the second part of the chapter of sustainable development, planning and sustainable development in Indian context. This is the second part of the chapter. We start from the term development. The process of human environment interaction depend upon the level of technology and institution nurtured by a society. While the technology and institutions have helped in increasing the pace of human environment interaction, the momentum thus generated in return that accelerate technological progress and transformation and creation of institutions. Hence, development is multi-dimensional concept. We are discussing here the meaning of development. In past time we are thinking about the development is directly related to the economic development, whereas development is a dynamic concept. It is a positive and qualitative concept. Already you have studied in human development chapter meaning of growth and development. Already you have studied. तो डेवलपमेंट जो है उसको हम मोस्टली पॉजिटिव वे में या क्वालिटी वे में ही लेंगे, लेकिन इन अ पास्ट मोस्टली ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है या जो लोग हैं वो डेवलपमेंट को एज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही ले रहे थे, लेकिन हैंस नाउ अब आज के समय में ये धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ वन फेज ऑफ डेवलपमेंट. Hence, development is a multinational concept signifying the positive, irreversible transformation of economy, society and environment. यानी कि तीनों ही चीज़ों को हमें development में लेना है, that is economy as well as society and as well as environment. The concept of development is dynamic and has evolved during second half of the century. जो concept of development जो है इसको largely देखना जो है शुरू किया गया after the second half of the 20th century and after the World War II era. कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वाज सिनोनिमस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. किसी समय में ये एक दूसरा रूप था इकोनॉमिक ग्रोथ का जिसको हम डेवलपमेंट कहते थे. मेजर इन टर्म ऑफ टेम्पोरल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है यानी कि पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हो रही है या पर कैपिटा कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स दैट कंट्री इज डेवलप्ड. But even the countries having high economic growth experience speedy rise in poverty because of its unequal distribution. लेकिन देखने में ऐसा आया कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जिनकी ग्रोथ लेवल जो है बहुत हाई है, जीएनपी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही हैं, बट स्टिल देयर इज़ ए पॉवर्टी. वहाँ पर अभी भी गरीबी है और एक दो जो खाई है बीच में क्रिएट होती जा रही है. जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो पुअर होते जा रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट रिसोर्सेज. In 1970s, the phrases such as redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of development. तो 1970s में ये चीज़ों को डेवलपमेंट को और एलेबोरेट जो है किया जाने लगा और उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको समानता या समता के साथ अटैच किया गया. While dealing with the questions related to redistribution and equity, it was realized that the concept of development cannot be restricted to a one phase that is economic sphere. तो यहाँ पर ये भी महसूस किया गया, रियलाइज किया गया कि we can't stick to the one phase that is a economic sphere. और आपने HDI यानी कि आपने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा है उसमें हम तीन चीज़ों को ही लेते हैं, दैट इज़ accessibility to resources, accessibility to medical facilities, accessibility to education. ये तीनों ही चीज़ें जो हैं important है for the growth of development of human beings. It is include the issue such as improving the well-being. अब economic
एक्टिविटी जो है या इकोनॉमिक स्फीयर जो है दैट इज़ अ वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स विच वी हैव टू बी इंक्लूड इन डेवलपमेंट, दैट इज़ वेल बीइंग, living standard of people, availing of the health, education, and equality of opportunities, and ensuring political and civil rights. तो these lines are very important कि development को हम इसमें ही हम include करेंगे कि लोगों का well-being and living standard should be improved. They can avail the health facilities, जब भी वो बीमार diseased होते हैं, they have accessible to the health facilities, education system की तरफ पहुंच सकें और समान सभी को opportunity मिले. ये नहीं है कि अमीरों को मिल जाए और गरीब जो है रह जाए, समता का अधिकार जिसे हम कहेंगे, इक्विटी जो है वो यहाँ पर जरूरी है. एंड इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, तो यानी कि पॉलिटिकल यानी कि गुड गवर्नेंस शुड बी देयर, एंड वी ऑल हैव गेट द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सिविल राइट्स जो हैं हम सभी को ही बराबर मिले. The notion of sustainable development emerged in the wake of general rise in the awareness of environmental issues in the late 1960s in Western world. जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, कनाडा है, साउथ अमेरिका है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं हम इनको वेस्टर्न वर्ल्ड का नाम देते हैं, और जो हमारी कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं हम इसको हम ईस्टर्न वर्ल्ड का नाम देते हैं. तो 1960s में ये बात जो है सामने आनी शुरू हुई कि डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. It reflected the concern of people about undesirable effect of industrial development on the environment. तो ऐसा कहा जाने लगा कि लोगों का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो लगातार हो रही है उससे क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट इश्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं. There are two or three publications also there. The one of is the population bomb by Ehrlich, and in 1968 the limits to growth by Meadows and others in 1972. These are some two books which are published in 1968 and 1978. तो ये भी environmentalists जो हैं उन्होंने एक डर दिखाना शुरू करा लोगों को कि हम लगातार जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिसने कि रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है. यहीं से ही ये नया मॉडल शुरू हुआ, एंड दैट मॉडल इज कम्स अंडर द डेवलपमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. This is two books which are I have already discussed, the population bomb and the limits to growth. Concerned with growing opinion of world community, अब धीरे धीरे पूरे संसार की जो लोग हैं वो environmental issues के ऊपर बात करने लगे, चर्चाएं करने लगी, और यूनाइटेड नेशंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड कमीशन on environment and development, that is WCED. ठीक है, it is headed by the Norwegian प्राइम मिनिस्टर ग्रू हेल्म ब्रूटलैंड. ब्रूटलैंड का नाम जो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में समटाइम्स आता है, एंड द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड ब्रूटलैंड रिपोर्ट, Our Common Future in 1987. This is very very important. Brundtland report. This is entitled as Our Common Future. The report defines sustainable development. इसमें sustainable development की ही बात करी गई है. Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहीं से ही हम समझना शुरू करते हैं कि मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कि आज भी हम अपनी डेवलपमेंट भी करें और रिसोर्सेज को हम फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखें. ऐसा नहीं है कि हम अपनी डेवलपमेंट को रोक दें, अपनी नेसेसिटीज़ को रोक दें और
जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बचाने. नो, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइजिंग द present situations, or we have to we have to save the resources for the future generation also, and this is called sustainable development. And this is one report. This is the Prime Minister of Norway, Brundtland, commissioned and sustainable development, our common future. अब common future की जो बात यहाँ पर कही गई है, हम लोगों ने अपने कंट्रीज को डिवाइड कर दिया पॉलिटिकल बाउंड्रीज में, लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है. ठीक है, जो भी पॉल्यूशंस हो रहे हैं या एक्सप्लॉयटेशंस हो रही हैं उसका इफेक्ट ऑल ओवर पड़ता है, ऑल ओवर वर्ल्ड. वर्ल्ड जो है वो एक ही है, संसार अर्थ जो है वो एक ही है. कहीं पर भी एक्सेसिव यूजेस होते हैं तो फ्लड्स आएंगे, सुनामीज आएंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे. तो ये ऐसा नहीं है कि एक कंट्री, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने जितनी भी डेवलपमेंट, हम अपने देश में जितना मर्जी धुआं उड़ा ले और हमें कोई परवाह नहीं है कि ना साथ वाली स्टेट में क्या हो रहा है, हमने तो अपना काम कर लिया है ना. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अवर कॉमन फ्यूचर. ठीक है, जो हमारा फ्यूचर है यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो हमारा कॉमन है, वो किसी पॉलिटिकल बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है. हम इसके लिए हम ये कह सकते हैं, एक एग्जांपल आई कैन कोट, कि हम पंजाब में जब पराली को जलाया जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो कहाँ पर पड़ रहा है, दिल्ली में पड़ रहा है ना. तो ये पॉल्यूशन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट से कंसर्न्ड नहीं है, वी ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस. तो यहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज कुछ नहीं है. यहाँ पर अगर हमने एनवायरनमेंट को बचाना है तो हमारा सभी का ही कॉमन जो एजेंडाज होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सभी के ही साथ में होने चाहिए अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं. केस स्टडी यहाँ पर सेकेंड केस स्टडी की बात करेंगे. फर्स्ट केस स्टडी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रही इन प्रीवियस वीडियो, और ये सेकंड केस स्टडी हमारी आ गई है. दिस इज इंदिरा गांधी कैनाल नहर कमांड एरिया. इसको हम पहले राजस्थान कैनाल भी कहते थे और उसके बाद ये इसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जाना जाता है. दिस इज द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन इंडिया. इट इज कंसीव्ड बाय द कन्वर्सन इन 1948 और इसको लॉन्च किया गया इन 31 मार्च 1958. The canal originated at Harike Barrage in Punjab and runs parallel to Pakistan border at an average distance of 40 kilometer in Thar Desert, Marusthali of Rajasthan. तो हरिके बैराज जो है पंजाब में ही है और यहाँ पर टू रिवर्स जो है यहाँ पर ज्वाइन करती हैं और यहीं से इस कनाल को ओरिजिनेट किया गया है. और ये कनाल जो है लगभग 40 किलोमीटर रन कर रही है नियर द इन द थार डेजर्ट इन राजस्थान और ये पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल में चल रही है. नाउ लेट अस सी द मैप. दिस इज द हरिके बैराज. यहाँ पर सतलुज रिवर ये फ्लो कर रही है और ऊपर से ब्यास रिवर आ रही है. दिस पॉइंट इज हरिके बैराज. यहीं से ये जो कैनाल है ये इसको निकाला गया है. ठीक है, तो दिस इज द एरिया वेयर इट प्रोवाइड द इरिगेशन सिस्टम. और यहाँ पर यहाँ की जो मरुस्थल थार डेजर्ट का ये एरिया जो है वो कल्टिवेबल हो गया बिकॉज ऑफ दिस रिवर. The construction work of canal system has been carried out through two stages. two stages में इसको बनाया गया है. One stage is called stage 1 और ये कहाँ पर आया है, lies in गंगानगर, हनुमानगढ़ and northern part of बीकानेर. फिर उसके बाद इसके बन जाने से यानी कि स्टेज 1 जो है जब वो बन गया तो उसके कारण वहाँ पर जो एरिया है दैट इज अबाउट 5.53 लाख हेक्टेयर कम्स अंडर द कल्चरेबल लैंड. कल्चरेबल यानी कि कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट हुआ. तो कमांड एरिया सेकंड स्टेज जब स्प्रेड हुआ
तो एरिया कम्स अंडर द बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट, एंड इट कवर द 14.10 lakh hectare area comes under the cultivable land. In the lift canal, the water is lifted up to make it flow against the slope of the canal. यहाँ पर अब ये एक this is the technical fact that कि कैनाल जा रही है, कैनाल हमेशा जो है पानी का फ्लो जो है स्लोप में होगा, लेकिन देयर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पर स्लोप जो है वो अगेंस्ट हो गई, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, पानी को लिफ्ट किया जाता है और लिफ्ट करके दूसरी कैनाल में डाला जाता है, एंड दैट अगेन फ्लो टू अनदर एरिया. This is the technical system provided here. All the lift canals of Indira Gandhi Canal System originated at left bank of main canal, while all the canals in the right bank of main canal flow channels. Irrigation in stage 1 command area canal introduced in 1960s, and जो second part था stage second जो है वो जो है 1980s में स्टार्ट हुई और इरिगेशन सिस्टम वहाँ पर उन लोगों को मिला था. इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इरिगेशन इन दिस ड्राई लैंड. अब आपको मालूम है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ मरुस्थली थार डेजर्ट है, दिस इज अ ड्राई एरिड लैंड है, और वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. पानी के मिल जाने के कारण वहाँ पर वहाँ की इकोलॉजी चेंज हो गई, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर गई, सोसाइटी जो है जो पिछड़ी हुई सोसाइटी थी यानी बैकवर्डनेस थी वहाँ पर भी चेंजेस आ गए. इकोलॉजी कैसे चेंज हो गई, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जिस तरह के प्लांट्स लगते हैं या जिस तरह के हैबिटेंट्स हैं, जिस तरह के रेप्टाइल्स हैं, वो धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो गए, यानी कि वो ख़त्म होने शुरू हो गए, और पानी में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं या पानी से चलने वाले जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करना शुरू हो गए. ठीक है, तो इकोलॉजी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई. इकोनॉमी जैसे ही वहाँ पर कल्टीवेशन लैंड इंक्रीज हुआ तो अपने आप इकोनॉमी जो है वहाँ की डेवलप हो गई, सोसाइटी में भी बदलाव आया. इट हैज़ इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ रीजन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ वी हैव टू स्ट्रेस हियर दिस पॉइंट कि पानी आ जाने के कारण देयर इज ओनली पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं आए हैं, नेगेटिव फैक्टर्स भी आए हैं. ठीक है, जो पानी आ जाने के कारण यानी कि इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो जाने के कारण वहाँ की इकोलॉजी जो है वो चेंज हो गई. ठीक है, और पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है कि वहाँ पर जो क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा होने शुरू हो गई, लेकिन कल्टीवेशन और इरिगेशन हो जाने के कारण कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी आए जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर, अब हम यहाँ पर हम पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करेंगे. सबसे पहले द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड वेरियस अफॉरेस्टेशन एंड पास्चर लैंड डेवलप. ठीक है, अब क्या हुआ, पानी में मॉइस्चर ज़्यादा आना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द कैनाल, और उसके कारण वन और पास्चर लैंड जो है वो डेवलप हो गए. प्रोग्राम अंडर CAD. नाउ इट इज रिजल्टिंग द ग्रीनिंग द लैंड. ठीक है, धीरे धीरे हरियाली जो है यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई. जब हरियाली बढ़नी शुरू हुई तो रिड्यूसिंग विंड एरोजन एंड सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम. सिल्टेशन का मतलब है हवा से उड़कर जो मिट्टी और रेता जो है वो कैनाल में आकर जमा हो जाती थी, उसको हम सिल्टेशन कहते हैं. और जब पेड़ पौधे लगने शुरू हो गए, ग्रास लैंड इंक्रीज होनी शुरू होगी, तो विंड एरोजन यानी कि शीट एरोजन जो हो जाता था, हवा जो है वो मिट्टी की लेयर को उड़ा के ले जाती थी, वो भी रिड्यूस होनी शुरू हो गए. बट द इंटेंसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इरिगेशन और एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हो जाने के कारण, एक्सेसिव तो यूँ ही होगा ही, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी तो आसानी से मिल गया, लेकिन जो इवेपोरेशन सिस्टम है वो तो है ही है, वहाँ पर गर्मी तो है ही है, सनशाइन तो हो रहा है, तो उसके कारण ट्विन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई. ट्विन प्रॉब्लम्स कौन सी, दो प्रॉब्लम्स आई. नंबर 1 इज वाटर लॉगिंग एंड नंबर 2 इज सॉइल सैलिनिटी. वाटर लॉगिंग होना शुरू हो गया वहाँ पर, यानी कि मार्शी लैंड डेवलप होनी शुरू हुई क्योंकि ये पानी को अब्जॉर्ब नहीं करती थी. और दूसरा साथ में ही क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पानी इरिगेशन हो जाने के कारण जो लैंड है उसमें खारापन जो है जो वो आना शुरू हो गया, जिसे हम सॉइल सैलिनिटी का नाम देते हैं.
सॉइल मॉइस्चर हैज़ टू लिमिटेड फैक्टर सक्सेसफुल ग्रोइंग द क्रॉप्स। धीरे धीरे वहाँ पर अब पॉजिटिव की बात कर लेते हैं फिर दोबारा से कि क्रॉप्स जो हैं वहाँ पर आसानी से ग्रो करनी शुरू हो गई। इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग जो है वो इंक्रीज हो गई। वहाँ की जो क्रॉप्स थी, ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी जो हम वहाँ पर उगाते थे, वो थी ग्राम, बाजरा एंड ज्वार, उसकी जगह पर रिप्लेस हो गई वीट, कॉटन एंड ग्राउंडनट। इवन राइस इज ऑल्सो कल्टिवेटिंग। आपको मालूम है कि राइस जो है वो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इंटेंसिव इरिगेशन जो है वहाँ पर आ जाने के कारण, और इसी का ही रिजल्ट जो है वो वाटर लॉगिंग और सॉइल एंड सैलिनिटी जो है इंक्रीज होती चलेगी, और वहाँ की सस्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो खराब होना शुरू हो गया। सस्टेबल डेवलपमेंट जो है वहाँ की खराब होनी शुरू हुई। मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर यहाँ की हम कैनाल की बात करते हैं, दिस कैनाल प्रोजेक्ट की ही बात करते हैं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में एक तो आपका फ़ायदा यही हुआ कि इरिगेशन क्रॉप्स जो है वहाँ पर डेवलप हो गई जिनको सिंचाई की ज़रूरत होती थी, और पास्चर लैंड जो है वो भी डेवलप हो गई। क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो गया यहाँ पर। कहाँ तो यहाँ पर मोटे अनाज को उत्पादित किया जाता था, ज्वार, बाजरा और ग्राम ही लिया जाता था, लेकिन अब जो है उसकी जगह दूसरी चीज़ों को ले लिया। तो वहाँ पर अब एम्फसाइज किया गया कि इन क्रॉप्स को ना लेकर प्लांटेशन की जाए या सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो लिया गया। सीआईडी प्रोग्राम में कुछ और प्रोग्राम्स भी लिए गए कि वहाँ पर लेवलिंग करी जाए, बाड़ाबंदी की जाए, और ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कमांड एरिया में किया जा सके। इसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए। ये एरिया जैसे आपको यहाँ पर अगेन आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट कि लॉगिंग, जो वाटर लॉगिंग आ गया और सॉइल सैलिनिटी हो गया, तो कुछ मेजर्स जो हैं यहाँ पर लिए गए जिसको हम कहते हैं मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो परेशानियाँ आ रही थी तो उसको दूर करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ली गई, प्रमोशन की गई इन मेजर्स को। क्या किया गया? व्हाट आर द मेजर्स टेकन इन अ कनाल प्रोजेक्ट? स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की एक्सेसिव इरिगेशन को ना लिया जाए, और मेनली जो है इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर लैंड जो है उनको डेवलप किया जाए। यानी कि जो एरिया स्टेज 1 में आ रहा है वहाँ पर प्रोटेक्टिव इरिगेशन की जाए, और जो एरिया सेकंड में आ रहा है दैट वहाँ पर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर लैंड जो है उनको डेवलप किया जाए। क्रॉप पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। ठीक है, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ज़्यादा ना लिया जाए, इसकी जगह पर सिट्रस फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स को ही लिया जाए। ठीक है, इसके साथ ही आपका नेक्स्ट था वाड़ाबंदी सिस्टम जो है वो किया जाए, और जो खेत हैं उनकी लेवलिंग जो है वो बराबर की जाए ताकि वाटर लॉस जो है वहाँ पर ज़्यादा ना हो। द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लैगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। इनको रिक्लेम किया जाना चाहिए, इनको दूर किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू अफॉरेस्टेशन। कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएं, शेल्टर बेल्ट्स बनाई जाएं, और पास्चर लैंड जो है यहाँ पर बनाया जाए। The economic sustainability in a region cannot be attained only through the development of agriculture, animal husbandry. The agriculture and allied activities have to develop along with other sectors also, and diversification of economic base। यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में सिर्फ हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ही ना लें, उससे के साथ जुड़ी हुई और भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको भी इम्प्रूव किया जाए। नाउ दिस इज़ द दैट्स ऑफ दिस chapter. Now assignment portion, these are some questions are given. Write detail concept of sustainable development, explain case study of Indira Gandhi Canal command area, give the positive and negative impacts of irrigation in Indira Gandhi Canal command, what are the measures for promotion of sustainable development in context of Indira Gandhi Canal, and do all the NCERT questions. I hope you understand this chapter. Thank you so much.